الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات، مختصر حمد و صلاۃ کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ کی آخری آیات سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ ربیع الاول جاری اور ساری یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی اعتبار سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اگرچہ آپ کی آمد کا چرچا دنیا میں بے انتہا، اور گزشتہ جمعے کی تقریر میں ہم نے عرض کیا
کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم ازل ہی میں ایک بزم سماری اور جس میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بلایا، یعنی ان کی ارواح، اور ان سے ایک عہد اور پیمان، ان سے ایک میثاق لیا، اور اس پر گفتگو گزشتہ جمعے آپ سماعت فرما چکے کہ کس قدر اہتمام اور انصرام سے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا جا رہا۔ محترم حضرات، اس مہینے میں وہ مقدس شخصیت جلوہ گر ہوئی۔ ہم اور آپ غور کریں اپنی تقدیر پر، کتنا ہی ناز کریں تو کم۔ یہ وہ مقدس ہستی ہیں کہ جن کا امتی ہونا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام باعث رحمت سمجھتے، اور انبیاء ربی کریم کی بارگاہ میں ملتجی ہوتے کہ ہمیں اس اپنے خاص معظم رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ اور ہم اور آپ غور کیجیے، مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے اور از خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہمیں مل گئی، اور بے مانگے یہ انعام اور اکرام اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا، کیا جائے کم۔ پھر جب وہ اس دنیا میں آئے تو وہ کون سی نعمت اور کون سی چیز ہے جو ہمیں عطا نہیں ہوئی؟ بے شمار رحمت اور نعمت لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں جلوہ گر، جس میں سینکڑوں آیتیں اس کے ثبوت میں پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن آج ہم نے جو آیت تلاوت کی اس کا ترجمہ، مرادی معنی، اور اس میں سے ہم صرف ایک جملے پر کلام کریں گے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور مرادی معنی، فرما لقد جاءکم رسول، بتحقیق البتہ ضرور بضرور تمہارے پاس تشریف لائے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک رسول، من انفسکم، یہ تم ہی میں سے آئے۔ یہ رجال الغیب سے نہیں، کسی فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارا اور انبیاء کا امام بنا کر نہیں بھیجا، وہ رجال الغیب سے نہیں، یہ تم ہی میں سے آئے ہیں، یہ انسان۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور ان کا حال یہ ہے کہ جب تم کسی بھی تکلیف، صعوبت، پریشانی میں ہو تو انہیں گراں گزرتا ہے۔ ان پر گراں تب گزرے گا جب آدمی کو جس کی جانب مبعوث کیا گیا اس کے حال سے ہمہ وقت خبر ہو۔ خبر ہی نہ ہو جن کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، ظاہر ہے کہ گراں نہیں گزرے گا۔ اس کا صاف معنی یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کا غلام کسی صعوبت، پریشانی کا شکار ہو تو حضور کو خبر ہو جاتی ہے اور آپ پر یہ گراں گزرتا ہے۔ فرما حریص علیکم، صرف حریص نہیں فرمایا، حریص علیکم، تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے، بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور سارے جہاں کے مومنین کے لیے آپ کو رؤوف اور رحیم بنا کر بھیجا گیا۔ یہ اس کا مرادی معنی اور عزیزان گرامی اس کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت سورہ توبہ کی، جب آدمی مسلسل قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھنے کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو اس میں علماء کا مذہب یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھے گا سورہ توبہ میں۔ ہاں، اگر متن میں سے کوئی آیت وہ تلاوت کرے تو ایسے وقت میں اس آیت مقدسہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا جائز بلکہ مستحب۔ اور ماہرین کی رائے یہ ہے کہ جب یہ آیت پڑھو لقد جاءکم رسول من انفسکم حریص، لفظ حریص پر وقت نہ کیا جائے کہ یہ معنی ایسا دے گا جو حضور کی شان کے لائق نہیں۔ اگر قاری کی سانس ٹوٹ جائے
तो वो इस पर इक्तिफा करे जहां मकसद पूरा हो जाए, वो पढ़े लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम हरीसुन अलैकुम। अगर उसे वक्त करना है तो हरीस पर न करे बल्कि हरीसुन अलैकुम पर करे, और उसके बाद बगैर पीछे से लौट आए क्योंकि मकसद पूरा हो गया। बिल मोमिनीन रऊफ रहीम से क़िरात करे। इसकी वजह क्या? देखिए, हम इसी जुमले पर आज कलाम करेंगे, हरीसुन अलैकुम। आप आम तरीके से कहते हैं कि उर्दू जबान एक लश्करी जबान, इसमें बे इंतहा बल्कि काफी ज्यादा वो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं जो अरबी के। फारसी का भी इसमें बहुत बड़ा दखल, इसलिए कि सदियों से मुसलमानों की जबान फारसी रही। हमारे यहाँ दरसे निजामी में किताब तो पढ़ाई जा रही है अरबी की और समझाए जा रहे हैं अरबी कवायद, सर्फ और नहव, लेकिन उसको समझाने के लिए फारसी जबान में उसको समझाया जाता है। यानी पढ़ाई जा रही अरबी ग्रामर और शरह उसकी फारसी में है, इसलिए कि बच्चा अरबी जानते जानते फारसी भी जानने लग जाए। फारसी चूंकि मुसलमानों की बड़ी कदीमी जबान रही, तो इस वजह से फारसी को जिंदा करने के लिए दरसे निजामी में बाज़ किताबें अलहदा से फारसी में भी मौजूद, और गुलिस्तां और बोस्तां भी पढ़ाई जाती है जो फारसी की है और बड़ी हिकमत और दानाई की किताब। कहते हैं किसी आदमी को अगर अकल सीखनी हो तो वो गुलिस्तां, बोस्तां और मौलाना रूम की मसनवी का मुतालिया करे। किसी ने हकीम लुकमान से पूछा कि ये बताइए कि आप में इतनी अकल कहां से आ गई? अरे वो तो फारसी से भी बहुत पुराने आदमी थे, उन्होंने बड़ा शानदार जुमला हम सब और सारों के लिए एक पैगाम दिया। उन्होंने कहा, ये तुम जानना चाहते हो कि मुझे इतनी अकल कैसे आई? तो बेवकूफों को देखकर मैंने अकल सीखी है। कही क्या बात हुई? भाई, आदमी अकल तो किसी अकलमंद से सीखता है कि कोई अकलमंद उसे पढ़ाए समझे। उनका नहीं, मैंने तो अकल बेवकूफों को देखकर सीखी है। क्या मतलब हुआ? बेवकूफ कोई काम करे और खड्डे में गिर जाए, मैं समझ जाता हूं कि ये काम मुझे नहीं करना चाहिए। तो बाज लोग बेवकूफों को देखकर भी अकल सीखते हैं। क्योंकि फारसी एक गोया दरसे निजामी की कुतुब का बहुत बड़ा हिस्सा मुसलमानों में राज रही, इसलिए फारसी पर भी बड़ा खासा जोर दिया जाता है। मैं कहना ये चाहता था कि बाद अरबी ऐसे अल्फाज जो अरबी में भी उसी तरह मशहूर हैं और फारसी में भी। देखिए, हम यहाँ जितने बैठे हुए हैं, हम इसको यूं ताबीर करते हैं हिर्स और हवस। भाई आप बताइए, हिर्स और हवस जो है ये बहुत बुरी चीज, अच्छी चीज नहीं। फला आदमी देखिए बड़ा शानदार, बहुत नेक, नमाज भी पढ़ता, मगर जनाब बड़ा हरीस है इस आदमी को। और हिर्स का आलम अजीजाने गिरामी क्या है? ये हिर्स, हवस, एक दूसरे से जलना उड़ना, इसकी भी दो किस्म है। अगर आप इस पे गौर करें और अगर तहकीक करना चाहें तो इमाम गजाली को पढ़िए कि हर मामले का तवालत का यहाँ वक्त नहीं होता। इसकी भी दो किस्में। एक तो ये है कि भाई फला आदमी को जो दौलत मिली है इतनी ही मुझे मिल जाए तो मैं राजी हो जाऊंगा। फला ने अगर बंगला बना लिया तो मेरा बंगला भी ऐसा होना चाहिए। एक तो किस्म ये है। और ये है कि मेरे पास ना हो तो कोई हर्ज नहीं, इस कमबख्त के पास क्यों है? आपने तो जहन में आती है। एक तो ये कि मुझे भी वही मिल जाए जो इसे मिला है, और एक किस्म इसकी ये है कि भाई चलो ठीक है, मुझे नहीं मिला, न मिले, इस कमबख्त को कैसे मिल गया? अब देखिए, आदमी बिला वजह के एक दूसरे को देख करके कोड़ रहा। तो आप जानते हैं हिर्स, हवस, ये ऐसे जुमले हैं जो उर्दू में भी बहुत मारूफ हैं। अगर इसको हुजूर की जानिब मंसूब कर दिया जाए कि आप तो अल अयाज़ बिल्लाह ताला हरीस हैं, तो जाहिर है कि ये अदब के खिलाफ है। और हुजूर की जिंदगी भी इस बात पर शाहिद है। अल्लाह अकबर, हिर्स और हवस को हुजूर ने इस तरीके से रुखसत कर दिया था। फरमाते, मैं अगर चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले
सोने के पहाड़ चले, मगर जानते हो मैंने किसे इख्तियार किया? मैंने इसे इख्तियार किया कि एक दिन का खाऊं और दूसरे दिन का अपने रब से मांगू। मैंने तो इसे पसंद किया, वरना मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चलें। एक फकीर का कौल मुझे दाता गंजबख्श अली हजवेरी रज़ियल्लाहु अन्हु की किताब कश्फुल महजूब में मिला। अरे साहब, पढ़कर दिल आपका बाग बाग हो जाए और ईमान ताजा हो जाए, और सूफिया की रम वो कितने अरफा मकाम पर होते हैं वो भी समझ में आ जाए। एक बहुत बड़े कर्रो फर का बादशाह, वो बादशाह ने आनकर एक फकीर से पूछा कि जिसके कपड़े फटे हुए, जिसकी बज़ाहिर जाहो हशमत कुछ नहीं, बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि बिल्कुल हकीर और फकीर। बादशाह ने कहा, फकीर साहब मांगो, क्या मांगते? जैसे बड़े बड़े सरमाएदारों की आदत होती है कि वो मुतलक कहते मांगो भाई क्या मांगते। बड़े बड़े बादशाहों को देखा, मांग क्या मांगता, लेकिन फकीरों के आगे सबने घुटने टेक दिए। आप जानते हैं अबू जाफर मंसूर बड़ा कर्रो फर का हुक्मरान था। मंसूर बड़े उलमा पर जुल्म किए, सैकड़ों अकाबिर उलमा शहीद किए, और इमाम आजम अबू हनीफा के कत्ल का दाग भी मंसूर ही के माथे पर है। एक दिन शहर के चीदा चीदा सूफिया ने कहा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं, जो किसी बादशाह से अमीरुल मोमिनीन से मिलते नहीं। मंसूर खुश हो गया, वाह 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 वाह, ये आज फंसे हैं सूफी, ये मुझसे प्लाट मांगेंगे, ये मुझसे बंगला मांगे, ये दीनार और दिरहम मांगेंगे, किस तरीके से मैं अपने शहर के सूफियों को राम कर लूंगा। उन्होंने कहा जल्दी आओ, जल्दी आओ, भेजो जल्दी से मुलाकात, मत बिठाना, इन्हें कोई टाइम जाया नहीं करना। 4-6 सूफी मंसूर के पास आए, उन्हें कहा कहिए आपकी हाजत क्या है? सुभान अल्लाह, एक सूफी ने आगे बढ़कर के कहा, हमारी कोई हाजत नहीं, हम एक जगह बैठे हुए कुछ सोच रहे थे, हमने सोचा चलो बादशाह को पैगाम दे दें। हम इसलिए आए कि हमने कहा मंसूर दुनिया तो तूने कमा ली, खुदा के वास्ते कुछ आखिरत भी कमा ले। बस हम तो तुझे ये बताने आए थे, सलाम वालेकुम ये कहकर चले गए, और इतने बड़े कर्रो फर के बादशाह का मुंह लटक गया। गरज के बादशाह ने फकीर से कहा, मांगो क्या मांगते हो? फकीर ने जानते हो क्या कहा? गर्दन ऊंची करके कहा, मैं अपने गुलामों के गुलामों से कुछ नहीं मांगता। अरे बादशाह के तो तलबों के नीचे से जमीन हट गई कि ये चौबदार, ये वजीर आजम, ये वजीर, ये क्या कह रहे हो, ये कह रहा? कह रहा, हमने कहा भाई मैंने वो समझा शायद हजरत की समात में कोई फर्क हो। कहने लगे जी मैंने आपसे ये कहा है कि मांगो क्या मांगते हो ताकि दिया जाए। उन्होंने कहा मैंने कह तो दिया तुझे कि मैं अपने गुलामों के गुलामों से कुछ नहीं मांगता। बादशाह हैरान हो गया कि कोई समाज का फर्क भी नहीं, बात ये जाने क्या कहना चाहता। उन्होंने कहा हजरत साहब जरा वजाहत तो कीजिए क्या है? फरमा सुन, हिरस और हवीस ये दोनों मेरे गुलाम और तू उनका गुलाम। अल्लाह, अब क्या हिकमत की बात कह गया। अल्लाह तबारक व तआला दाता गंजबख्श अली हजवेरी की कब्र को रहमत और रिजवान से भर दे। एक दो जुमले में पूरे तसव्वुफ को समझा दिया, दुनिया और आखिरत को समझा दिया। उनका क्या कह रहा? उन्होंने कहा तू हिरस और हवीस का गुलाम है और ये दोनों मेरे गुलाम हैं। जो मेरे गुलाम हैं वो तेरे आका हैं, तो मैं अपने गुलामों के गुलामों से क्या मांगूंगा? बादशाह मुंह लटका कर चला गया। मैं कहना ये चाहता था, हिरस और हवस जिस आदमी में आ जाए वो बड़ी बुरी चीज। और अल्लामा इमाम गजाली की खबर को अल्लाह ताला रहमत और रिजवान के फूलों से भर दे, बड़ी प्यारी बात समझा गए। फरमाते मेरे अजीज खूब याद रख, ये हिरस जो है ये आदमी की अकल पर पर्दा डाल देती। इसका उनसर जब आदमी पर गालिब आ जाए तो अकल को अंधा कर देती है, दिल को गंदा कर देती, दिमाग पर पर्दा डाल देती है, आदमी को न सुनाई देता है न टिपाई देता है। ये जिस पर सवार हो जाए आदमी बिल्कुल बेअक्ल और बेवकूफ हो जाता है जब हिर्स का पर्दा उसके जहन पर पड़ जाए। मौलाना रूम गोया हजरत इमाम गजाली अपने मजमून को आसान करने के लिए कि बात आवाम की समझ में आ जाए कि इमाम गजाली कहना क्या चाहते, इमाम गजाली ने अपनी बात को यूं समझाया कि एक शिकारी ने चिड़िया पकड़ी,
भाई जाहिर है कि शिकारी चिड़िया काय के लिए पकड़ता है? खाने के लिए पकड़ता है कि ज़िबा करे। जब चिड़िया को उसने पकड़ा तो इमाम गजाली ने फरमा, उस चिड़िया ने कहा, भाई शिकारी तूने काय के लिए पकड़ा? उन्होंने कहा मैंने इसलिए पकड़ा तुझे ज़िबा करूंगा और खाऊंगा। उन्होंने कहा भाई शिकारी ये बता कि मुझमें गोश्त कितना? भाई देख मैं मुकम्मल तो हूँ एक छटांग, इसमें से पर और पैर निकाल दिए जाएं, 3 हिस्से तो ये निकल गए, अब बचा पाओ छटांग। अब मुझे बताई सब पाओ छटांग गोश्त में तेरा क्या बनेगा? आगे की जबान खाए पीछे की चिल्लाए, इससे फायदा क्या होगा? उन्होंने कहा तू कहना क्या चाहती? उसने कहा मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू अगर मुझे जिंदा छोड़ दे तो मैं तुझे तानाई की एक बात बताऊं। इमाम गजाली कहते इसने सोचा क्या किया जाए, वाकई बात तो सही है, ये छोटी सी चिड़िया का गोश्त अगर पाव छटा कर मैं खा लूं तो इसमें कोई फायदा तो नहीं, मगर ये कहती है कि कोई हिकमत की बात बताएगी, तो हिकमत की बात सुनने में हरज क्या है, चलो छोड़ लो देखें कहती क्या। अब जनाब उसने चिड़िया को छोड़ दिया। इमाम गजाली कहते हैं ये चिड़िया जाकर दरख्त पर बैठी और दरख्त पर बैठने के बाद का ओ शिकारी बहुत ही तू बेवकूफ है, बड़ा अहमक। शिकारी कहने लगा वो कैसे? उसने कहा मेरे पेट में 3 छटाक सोने का डल्ला था, अगर तू मुझे ज़िबा करता तो तुझे 3 छटाक सोना मिल जाता। अब तो शिकारी कसे अफसोस होने का कम्बा धोखा देकर चली गई और आइंदा तो मैं फिर किसी चिड़िया की बात में नहीं आऊंगा और कम्बा को पकड़ के ही ज़िबा सैकड़ों। जनाब उसने जनाब जब मुकल्लज़ात बची फिर उस चिड़िया ने कहा ओ शिकारी तो जैसा भी बेवकूफ कोई नहीं है। उन्होंने कहा वो कैसे? अरे उसने कहा मेरा वजन कुल आधी छटांग तंबक 3 छटांग का सोना होगा का, यही कुल वजन मेरा आधी छटाक और पाव छटाक, ये 3 छटाक सोने का डल्ला आएगा कहाँ? इमाम गजाली कहते बात यह है कि हिरस जो है ये अकल पर पर्दा डाल देती है, आदमी को सुझाई नहीं देता। आपसे जाने हम में कितने लोग हैं, बड़ा माफ कीजिएगा अब कड़वा होता, जाने कितने बेवकूफ बने। स्टॉक एक्सचेंज में एक हवा चली। क्या हवा चली साहब? अरे साहब जो 5,000 जमा करा दे 30,000 बन जाएंगे, जो 30,000 जमा करा दे 1 लाख बन जाए, जो 1 लाख जमा करा दे 10 लाख बन जाए। लोग आनकर हमसे मसला पूछते, हम कहते खबरदार ये सारा का सारा सूद का धंधा है, हरगिज़ वहां मत फंसना। उन्होंने कहा ये मुल्ला जी मस्जिद में बैठाए मेहराब में नमाज पढ़ते, स्टॉक एक्सचेंज को ये क्या जाने, दुनिया के कारोबार को ये क्या जाने, इस्लामी मईशत को ये क्या जाने, माशी मामला ये क्या जाने, इनसे खाली नमाजें पढ़ा लो। मैंने कहा खुदा के वास्ते बचो, तलाश हो जाओ। नहीं माने, लोगों ने मकान बेच करके पैसा घुसेड़ दिया, दुकान बेच कर पैसा घुसेड़ दिया, इसलिए कि हर आदमी को मेहनत नहीं करनी, पैसा आना चाहिए। अब क्या हुआ, जैसे ही पासा पलटा तो उनका भी मौलवी लोग सही कहते थे, समझे साहब, अच्छा 1 लाख रुपये जमा कराओ, अभी बिजनेस हुआ नहीं, 5,000 पहले से नफा मिल गया। अकल से सोचो, कोई तिजारत का उसूल है, कोई माशी उसूल ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट से पहले 5,000 आपको दे दिया जाए? मुझे बताइए पूरा कराची लुट गया या नहीं? क्या बना स्टॉक एक्सचेंज का? इमाम गजाली ने सही फरमाया, हवस का भूत जब आदमी पर सवार हो जाए तो आदमी की अकल अंधी हो जाती है, दिमाग पर पर्दा पड़ जाता है, बात तूल पकड़ गई। मैं कहना ये चाहता था कि ये लफ्ज हुजूर पर क्यों इस्तेमाल हुआ, हरीसुन अलैकुम, सुनो अब क्या प्यारी बात है। फरमा ए गुलामान मुस्तफा सुनो, ऐ मेरे बंदो सुनो, मेरे हबीब को बंगले की हदीस नहीं है, मेरे हबीब को जमीन की हदीस नहीं है, दिरहम और दीनार की हदीस नहीं है, दुनियावी चाहवो हशमत की हदीस नहीं है, दुनिया और मताए दुनिया की हदीस नहीं है। हरीसुन अलैकुम, ये भलाई का तो चाहने वाला, हरीस तो है मगर तुम्हारे लिए, हरीसुन अलैकुम ये तुम्हारी भलाई का चाहने वाला है। क्या मतलब हुआ तुम्हारी भलाई का चाहने वाला? बुत के पूजने वालों,
उसे छोड़ दो, अल्लाह के पुजारी बन जाओ। अरे जगह जगह पत्थरों को सजदा करने वालों छोड़ो, एक अल्लाह तबारक व तआला को सजदा करने लग जाओ। सारी बुराई कत्ल गारत को छोड़ो, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे नबी बनाकर भेजा, लिहाजा मेरी इताअत फरमा बरदारी में आ जाओ। मालूम हुआ हरीसुन अलैकुम, ये दुनिया में कोई हरीस नहीं, माल और दौलत की कोई हरीस और हरीस नहीं है। अगर हिर्स है तो क्या हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारी भलाई के चाहने वाले, और ये हमारी भलाई के चाहने वाले कैसे हैं? मजमून बड़ा तवील, और वक्त हमारा साथ नहीं देता कि जब हुजूर ने इस दुनिया में कदम रखा, अरे कदम रखते ही हरीसुन अलैकुम का जलवा दिखाया। शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहरी ने लिखा, बड़े बड़े कद आवर मुहद्दिसीन ने इसे नकल फरमाया, और हुजूर की विलादत के वक्त के वाकयात में, मीलाद के वाकयात में 12 आपने उलमा से सुना होगा हुजूर के फजाइल और मनाकिब में, कि जब आप दुनिया में जलवागर हुए, उन दाइयों ने जो उस वक्त हुजूर की विलादत के बाद मौजूद थी, शिफा हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की वालिदा माजिदा भी, और भी दाई, उन्होंने क्या देखा? बड़ा हैरत का नक्शा कि हुजूर दुनिया में जलवागर हुए और जलवागर होते ही सजदे में चले गए। अल्लाह अकबर, पैदा होते ही सजदे में चले गए। अब क्या हुआ? जब पैदा होते ही सजदे में गए, हुजूर के नन्हे नन्हे लभाए मुबारक में जुम्बिश है, बहुत मुबारक हिल रहे हैं। जो दाइयां मौजूद थी, ये ऐसा हाल जो एक कुदरत की आदत के खिलाफ है कि कोई बच्चा पैदा हो और वो कुछ दहन और मुंह से कहने लग जाए, ये खिलाफ आदत। किसी ने कान करीब रखकर सुना कि देखें ये साहिबजादे अभी तो दुनिया में जलवागर हुए और ये क्या कहना चाह रहे हैं। सुनने वालों ने सुना कि अभी हुजूर दुनिया में जलवागर हैं, और हरीसुन अलैकुम का जलवा यूं दिखाया कि लबहाए मुबारक पर जुम्बिश है, और ये अर्ज कर रहे हैं, रब्बी हबली उम्मती उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत मुझे हिबा कर दे, मेरी उम्मत के उमूर जो है वो मेरे सुपुर्द कर दे, मेरी उम्मत के तमाम मामलात मेरे हवाले कर दे। रब्बी हबली उम्मती उम्मती, अल्लाह अकबर। तो आपने देखा इस दुनिया में जलवागर, और जलवागर होते ही हरीसुन अलैकुम, तुम्हारी बहुत बहुत भलाई के चाहने वाले हैं। तो देखा आपने, कोई दुनियावी भलाई के नहीं बल्कि तुम्हारी भलाई के चाहने वाले। अब आइए, हुजूर ने आम तरीके से हम पर जो मेहरबानी की, सिर्फ उसके चंद निकात के मजमून मुकम्मल हो जाए, बात की तकमील के बाद आप यहाँ से उठें कि बात मुकम्मल हो जाए। अब आइए, हुजूर ने आम जिंदगी में हम पर मेहरबानी क्या की, सिर्फ निकात, पूरी हदीसें नहीं, और ये सारी किताबु सलात वगैरह में आपको हदीसें मिल जाएं। उस जमाने इब्तिदाई इस्लाम का दौर था, खवातीन भी नमाज में आया करती। इस्लाम को सीखना था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने में जब इस्लाम आम हो गया, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने फितने की वजह से खवातीन को मस्जिद में आना रोक दिया। ठीक है, इब्तिदाई जमाना था, इन्हें सीखने की जरूरत थी। जब घर घर तबलीग होने लग गई और इस्लाम बिलादे अरब से निकलकर बिलादे अजम में फैल गया, अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के इज्तिहाद ने ये चाहा, अब खवातीन मस्जिद में न आया करें। खवातीन मस्जिद में आ रही, नमाज पढ़ के चली जाती। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मेरा जी तो ये चाहता है कि मैं नमाज में लंबी किरात करूं, लंबी सूरतों को पढ़ूं, मगर नमाज पढ़ाते में जब मेरे कान में आवाज आती है कि किसी का बच्चा रो रहा, किसी की बच्ची रो रही है और उसकी अम्मा शरीक नमाज है, तो मैं इस गरज से कि माँ जल्दी से घर पहुंचकर गोया अपने बच्चे को संभाल ले, मैं किरात में कमी कर देता हूँ, मैं किरात हल्की कर देता हूँ ताकि माँ जो है वो जल्दी से बच्चों तक पहुंच जाए। बज़ाहिर ये मामूली बात है, मगर हालत नमाज में नबी करीम अलैहिस्सलाम की शफ़क़त और मेहरबानी का पर आलम ये है। फरमाया, मेरा जी ये चाहता कि मैं मिसवाक करने को हर नमाज से पहले जरूरी कर दूं, यानी जरूरी कर दूं का तर्जुमा दो ही हो सकता, जिस तरीके से नमाज फर्ज है इसी तरीके से मिसवाक को भी तुम पर फर्ज कर दिया। या जरूरी कहने का एक मतलब ये होगा कि मैंने हर नमाज से पहले मिसवाक को वाजिब कर दिया कि कोई आदमी अगर मिसवाक न करता तो उसकी नमाज वाजिबुल इयादा हो,
दोबारा लौटा, मगर मेरे गुलामों मैं ने ये देखा कि ये तुम पर शाह गुजरेगा, तुम इस पर कुदरत नहीं रख सकोगे, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैंने मिसवाक को सुन्नत बना दिया। इमाम आजम अबू हनीफा का इसमें मजहब यह है कि मिसवाक जो है ये नमाज की सुन्नत नहीं बल्कि वुजू की सुन्नत है। जो वुजू की सुन्नत है उसमें मिसवाक शामिल है। बात दूर न निकल जाए, वो नमाज जो बगैर मिसवाक के पढ़ी जाए, मिसवाक से पढ़ने वाली नमाज का दर्जा बहुत ज्यादा है। मैंने कहीं जिम्नन पढ़ा काजी अयाज की शरह में, गालिबन या तो ये जुमला शहाबुद्दीन खिफाजी जो उनकी इबारत में है या मुल्ला अली कारी की इबारत में, इसलिए ये दोनों का हाशिया तकरीबन एक जगह। शरे काजी अयाज में मैंने पढ़ा, क्या प्यारा जुमला वो कह गए कि मुसलमानों जब मिसवाक इस्तेमाल करो ये नियत मत करना कि दांत साफ करने के लिए कर रहे हो कि चलो दांत चमकने लग जाए, मुंह की बदबू निकल जाए, दांत जो है वो उजले हो जाए। फरमा नहीं, मिसवाक करो तो इसलिए करो कि सरकार की सुन्नत पर अमल कर रहे हो। तो मिसवाक तो सरकार की सुन्नत पर अमल करने के लिए करो। इस अमल का समर ये होगा कि मुंह से बदबू भी चली जाएगी, दांत भी साफ हो जाएंगे, ये उसका समर है। मगर नीयत ये करना कि ये सरकार की मिसवाक है और सरकार की सुन्नत है इसलिए हम करते। फरमा मैंने इसको इसलिए तुम पर आसान कर दिया, कहीं तुम पर ये फर्ज ना कर दी जाए। फरमा मेरा जी ये चाहता था कि मैं इशा की नमाज को आखिरी वक्त में पढ़ूं। आखिरी वक्त से मुराद क्या है? उम्मन आदमी को समझाने के लिए रमजान में जब हम सहरी में उठते हैं बिल्कुल आखिरी वक्त वो होता है। फरमा मेरी तबीयत और जी ये चाहता है कि मैं इशा की नमाज को आखिरी वक्त में पढ़ूं, मगर मैंने देखा ये तुम पर शाह गुजरेगा, इसलिए मैंने इसे सुन्नत बना दिया कि जैसे ही नमाज का वक्त हो नमाज पढ़ ली जाए। और इसलिए पढ़ ली जाए जल्दी से नमाज पढ़ो, खा पी कर जल्दी सो जाओ। इसलिए सो जाओ ताकि तुम्हारा जल्दी सोना सुबह उठने में माविन और मददगार हो जाए। हिकमत तो यह है कि जब जल्दी सोगे तो सुबह उठोगे। लिहाजा हमने क्या किया, इसको बिल्कुल उलट दिया। मैं दूसरे इलाके की बात तो नहीं करता, लेकिन आप अगर हमारे कागजी बाजार, जोड़िया बाजार, मीठा दर, खारा दर, ये तीनों दर में दर बदर आप ठोकरे खाते रात में फिरिए तो 2-2 बजे तक लोग आपको चबूतरे पे जलवागर नजर आएंगे। इसलिए कि जब तक चबूतरा कॉन्फ्रेंस नहीं होगी आपको नींद नहीं आती। कितने दिल गुर्दे के हैं वो लोग कि खाना खाने के बाद खूब भिजना गपशप लड़ाने के बाद 1 बजे रात में उतरते हैं चबूतरे पे बैठने के लिए। क्या समझे आप? किस कदर तबई औकात, किस कदर वक्त की हम मुसलमानों ने अजीजाने में कदर की है। अब मुझे बताइए, फितरत का तकाजा ये कि जब आप 2 या 3 बजे सोएंगे नमाज फजर का क्या बनेगा? अल्लाह अकबर। अच्छा मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका की दूरबीनी। अगर हुजूर ये फरमा देते कि मैंने हुक्म कर दिया कि इशा की नमाज को आखिरी हिस्से में पढ़ा जाए तो 3 ही नमाजी होते। एक नमाज मस्जिद का खादिम, एक मस्जिद का मौज़िन जिसको अजान देने की ड्यूटी आपने सुपुर्द कर दी तनख्वाह देने के बाद, इस मौज़िन, और एक इमाम साहब। ये 2 मुक्तदी होते और बाकी कोई नहीं होता। सब के सब ख्वाबे खरगोश में अजीजान गिरामी बसर करते होते। ये मेरे आका की दानिशमंदी फरमाया। मैंने देखा ये तुम पर शाख होगा, इसलिए मैंने कहा कि शाह की नमाज को अव्वल वक्त में पढ़ लिया जाए। आपने देखा हर मामले में हुजूर अलैहिस्सलाम ने कितना करम फरमाया। मुझे ये बताइए, हमसे ये कहा गया कि ये वुजू किया जाए, बालों की जड़ थोड़ी और दोनों कानों के दरमियान की ये जगह अगर हुजूर फरमा देते कि चेहरा और सर भी धोया जाए, हर आदमी पूरी खोपड़ी नल के नीचे लगाकर धोता या नहीं धोता, अगर नमाज पढ़नी होती तो धोता या नहीं धोता। मगर देखा कि इसमें आसान है कि आदमी आराम से मुंह धो ले। अगर हमें ये कह दिया जाता कि हाथ को जनाब बगल समेत धोना है तो हम जुब्बा कुब्बा उतार कर छोटी बनियन पहनकर यहाँ तक हाथ धोते। मगर मेरे आका ने देखा मेरे गुलामों को इसमें दुश्वारी होगी, लिहाजा आस्तीन चढ़ाकर कोनियों समेत हाथ धो लिया जाए।
ہمیں یہ کہہ دیا جاتا کہ جب پیر دھو تو چڈا یا گھٹنے سمیت تمہیں دھونے ہوں گے، جسے نماز پڑھنی ہوتی دھوتا، مگر میرے آقا نے دیکھا یہ تم پر شاک گزرے گا، کہا پیروں کو ٹخنے تلے دھو۔ ارے مسلمانوں غور کرو تو میرے آقا کا کرم آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا، ہر گھنٹے ہر منٹ میں ملے گا، اس لیے کہ بالمؤمنین رؤوف رحیم، تو اس سے بس حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں اور مسلمانوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ تو احکام شریعہ میں جو حضور علیہ السلام نے کس قدر ہمارے لیے رعایت رکھی، یہ اسی لیے ہے کہ وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ آئیے صرف دو ایک باتیں کہ آپ کو حریص علیکم جو اس امت کے لیے بنا کر بھیجا، اس کی جلوہ گری تو آپ نے ایک تو یہ دیکھی کہ جب پیدا ہوئے، اور یہ بھی آپ نے دیکھ لیا جس کو ہم نے مختصر کیا، ساری زندگی کے شرعی احکامات میں حضور نے رعایت فرمائی، سارے احکامات میں۔ اب سنیے، یہ پوری تو ہیں ساری باتیں، اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھ سے یہ کہا، اے پیارے حبیب تم اس کے میں بتا رہا ہوں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ اس کا مفہوم، میرے رب نے مجھ سے فرما حبیب 50 لاکھ معاف کروا لو، معاف ہو جاتے، اچھا چلو ایگریمنٹ کرو 50 کروڑ کو چھوڑ دیا جائے، کوئی اور 1 ارب کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، فرما میں نے تعداد معین نہیں کی، میرے رب نے مجھ سے 2 باتیں فرمائی، ایک تو یہ کہ تم یہ کہو کہ اتنوں کو چھوڑ دیا جائے بغیر حساب کے، تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ اتنوں کو تو بغیر حساب کے چھوڑ دیا جائے، یا یہ مان لو کہ ہم تمہیں شفاعت کبریٰ کا درجہ دے دیتے ہیں، تم جس کی بھی شفاعت کرو اسے معاف کر دیا جائے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا رب سے اگر یہ وعدہ کر لیتے کہ 1 کروڑ معاف کر دیے جائیں، دوسرے کروڑوں کا کیا بنتا؟ اگر کہا جاتا کہ 1 ارب بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں، دوسروں کا کیا بنتا؟ کہا میں نے اس سے اختیار کیا کہ مولا مجھے شفاعت کبریٰ کا منصب دے دے، میں جسے چاہوں گا مغفرت کرا دوں گا، جسے چاہوں گا جنت میں لے جاؤں گا۔ فرما میں نے اسے اختیار کیا۔ شفاعت مصطفیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے شفاعت کبریٰ پر فائز کیا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ عنہ شفاعت مصطفیٰ کے نام پر 40 حدیث جمع فرمائی، ساری تفصیل آپ وہاں ملاحظہ فرما دیجئے کہ اس وقت میں گنجائش نہیں، تو آپ نے دیکھا دنیا میں کیسی بشارت تھی، حریص علیکم، بتاؤ ایسا حریص علیکم کوئی دوسری امت کو آقا ملا؟ اللہ اللہ، آئیے شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت کی دوسری جلد میں حضرت قسم ابن عباس جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی ان سے نقل کرتے حدیث طویل ہے، فرماتے ہم نے جب حضور کو قبر میں رکھا، سب نے حضور کا دیدار کیا، میں وہ شخص تھا کہ جو حضور کی قبر میں موجود تھا، میں نے کفن مبارک حضور کے چہرے سے ہٹایا، سب نے دیدار کر لیا، طے ہوا قبر بند کر دی جائے، میں نے سوچا کہ میں سب سے آخری ہوں، حضور کا دیدار کر کے کفن ڈھک کر قبر بند کر دی جائے۔ قسم خدا کی میں جب محو دیدار تھا میں حیران رہ گیا کہ قبر میں حضور کے لبھائے مبارکہ ہل رہے ہیں، ہونٹ مبارک ہل رہے ہیں۔ میں نے کفن بند کرنے سے پہلے اپنے کان لبھائے مصطفیٰ پر رکھ دیے کہ دیکھوں کیا فرماتے ہیں۔ قسم خدا کی میں نے سنا حضور قبر میں لیٹے ہوئے کہہ رہے ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے ہلا کر دے۔ مضمون تو بڑا طویل ہے، روح بدن سے نکل گئی، مگر حیات حقیقی اس کے حبیب کے بدن میں ایسی جلوہ گر ہے کہ روح نکلنے سے بھی حیات حقیقی کا انقطاع حضور کے بدن سے نہیں ہوا، بظاہر قبر میں ہے مگر حیات حقیقی کے وقت سے حضور کا سینہ مزین ہے، اور ایسے وقت میں بھی حریص علیکم کا جلوہ دکھا رہے ہیں۔ اب آخری بات ایمان سے کہو، وقت نہیں ورنہ بالکل میں عرض کرتا وہ نبی جو پیدا ہو حریص علیکم کا جلوہ دکھا، پوری زندگی نبوت کے اعلان کے بعد حریص علیکم کا جلوہ دکھائے، اور اس پر سینکڑوں آیات ہزاروں حدیثیں موجود ہیں۔ جب دنیا سے جا رہا حریص علیکم کا جلوہ دکھائے، مسلمانوں خدا کے لیے ان کے فرما بردار بن جاؤ، ان کے مطیع بن جاؤ، ان کے غلام بن جاؤ۔ جب صحیح معنی میں
حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور کل قیامت میں بھی حریص علیکم کا جلوہ جب دکھائیں گے، ہمارے جیسے چوروں کی نجات ہو جائے گی، ہمارے جیسے بے عملوں کی نجات ہو جائے گی، اور یقیناً وہاں بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حریص علیکم کا جلوہ دکھائیں گے، اور یقیناً جو حضور کے دامن سے وابستہ ہیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اور پیارے مصطفیٰ کے کرم سے ان کی نجات ہوگی۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بہت بہت بھلائی کا چاہنے والا ہے۔ وما علینا الا البلاغ، علینا